with okay, dear students, order pairs. What is order pair? जिस तरह नाम से जाहिर है कि order pair consists of two elements x and y, where x is the first element of the order pair, y is the second element of the order pair. Um, what order pair when order pair equal to each other? The order pair are equal if and only if its corresponding element equal to each जिस तरह x is equal to c and y is equal to d, then are equal. If b and c are not equal to which a corresponding element of the order pair is not equal. Here a is not equal to b, yani a is not equal to b, so we can say these are not equal. And if let the example is, let a is equal to 2, b is equal to 1, and other order pair is b is equal to 1 and a is equal to 2. These are two order pair, but you can see the first element of the first order pair is 2 and the second order pair first element is 1, which is not equal to, and therefore is and the second element also c b is equal to 1 and the second element of the first second order pair is 2, which is also corresponding it is not equal to, so we can say these two order pair is not equal because its corresponding element of each other is not equal. Now next we will discuss about the Cartesian product. What is a Cartesian product? Cartesian product, let's suppose A and B are two sets. The Cartesian product of A and B is denoted by that symbol. Cartesian product is also the sets of all possible order pairs which contains the first element of the order pair belong to first set A and the second element of the order pair belong to the second set of the Cartesian products, and the where we read the Cartesian product as A cross B, or symbolically we represent such as the Cartesian product is a set which contains all possible order pair where A is the first element of the first set of the Cartesian product and the second element of the order pair belong to the second set of the Cartesian products. Noted, if the first set has m element, yani number of element of the first set is m and the number of element of the second set of the Cartesian products n, the A cross B has a number of cardinality, number of elements m cross n, यानी प्रोडक्ट ऑफ m ज़रब n. तो प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, m मल्टीप्लिकेशन n एलिमेंट्स होंगे इसमें. तो अगर हमारे पास इस सेट, लेट सपोज अगर हमारे पास ए सेट की कार्डिनलिटी 2 है और सेकेंड सेट बी का कार्डिनलिटी 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी क्या होगा, 2 3 6 पॉसिबल इसके ऑर्डर पेयर होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में. कितने होंगे, 6, क्योंकि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट की कार्डिनलिटी क्या है, 2 है, सेकेंड सेट की कार्डिनलिटी 3 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, m ज़रब n कर दे तो आपके पास क्या आएगा, 6 एलिमेंट. 6 एलिमेंट मीन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे. अगर हमारे पास सेट ए की कार्डिनलिटी 4 हो और सेकेंड बी की कार्डिनलिटी आपके पास क्या हो, 3 हो, तो इसके पॉसिबल इसमें ऑर्डर पेयर कितने होंगे, 4 3 12 पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे इस सेट में. तो इसकी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्डिनलिटी क्या होगी, 12. तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर है. लेट हमारे पास एक सेट है 1 2 और बी सेकेंड सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा. अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कार्टेशियन ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेते हैं और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकंड सेट से लेते हैं. तो आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट आप ले लें
फर्स्ट सेट से और सेकंड एलिमेंट आप किससे ले लें, सेकंड सेट से। इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट आपने फर्स्ट सेट से लेना होगा और सेकंड आपने इससे लेना होगा। इस तरह 1 ए 1 बी और 1 सी आपने लिखा। इस तरह आपने सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट ए 2 ए 2 बी और 2 सी आपने लिखना है। तो आप देखिए इसमें कितने पॉसिबल एलिमेंट है, कितने पॉसिबल ऑर्डर पे 1 2 3 4 5 6 है। क्यों है, क्योंकि इस सेट का कार्डिनलिटी कितना है 2 है, इसकी कार्डिनलिटी कितना है 3 है। तो इसको आपस में ज़ारब करें 2 3 6, तो आपके पास पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे 6। इस तरह बी क्रॉस कर ले कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर किस सेट का होगा, बी से होगा और सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ए से होगा। ये आप देखें A1 A2 और फिर B1 फिर B2 और C1 फिर C2, इस तरह आपने लिखना होगा। अगर हमारे पास कार्डिनलिटी क्या है A क्रॉस A हो तो हमारे पास इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसके 2 एलिमेंट्स हैं तो दो ने 4 इसके ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर पेयर होंगे। तो आपने इसका इटसेल्फ आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, एक आपने इटसेल्फ ऑर्डर पेयर लेना होगा A क्रॉस A फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड भी इसका क्या होगा इसी सेट से होगा इस तरह। तो फिर 1 2 फिर इसका 2 1 और फिर 2 2 और B का भी इटसेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किस तरह लिखना है, B क्रॉस B को आपने लिखना है और इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितना होंगे, इसके कार्डिनलिटी B के कार्डिनलिटी कितना होंगे 3 हैं। तो इटसेल्फ आपने A क्रॉस A तो 2 3 ज़रबे 3 से 9 पॉसिबल ऑर्डर पेयर मानते हैं कि आपने फर्स्ट से लेना होगा A B A C, तो B A B B B C C A C B और C C इसके पॉसिबल एलिमेंट होंगे। नोट कर दी इस बात की, अगर हमारे पास A B और B क्रॉस A आपस में कम्यूटेटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होते हैं। अब देखिए इसका A क्रॉस B B क्रॉस A ये आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये है 1A और इसका ऑर्डर पेयर ये है A2, तो A1 और A आपस में इक्वल नहीं है। इसी तरह जो फर्स्ट एलिमेंट इसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का A है और यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड एलिमेंट 1 है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं। इसी तरह सारे पेयर को आप चेक कर दें कि इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A हम कह सकते हैं। इसी तरह अगर किसी एम्प्टी सेट का हम क्या ले ले कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ले, तो ये भी हम नहीं लिख सकते। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनता है एम्प्टी। क्यों बनता है कि एम्प्टी सेट में नो एलिमेंट, तो इसके साथ कोई भी ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसका हम फर्स्ट एलिमेंट होगा ऐसे हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, लेकिन एम्प्टी सेट में हमारे पास सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि A क्रॉस B। इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट सेकंड एम्प्टी हैं और सेकंड सेट A सेट हैं, तो फर्स्ट सेट में ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से हम इसको एम्प्टी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरी बात को देख कर दें कि A क्रॉस B की कार्डिनलिटी इज इक्वल टू फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी ज़रबे सेकंड सेट की कार्डिनलिटी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट कार्डिनलिटी क्या है 2 है, इसका क्या है 3 है, तो 2 ज़रबे 3 से क्या है 6 और 2 3 6 का भी कार्डिनलिटी क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। बात करते हैं आप रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन किस तरह बना सकते हैं। अगर आप एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड रिलेशन। लेट सपोज आप अगर हमारे पास क्या है A सेट है B सेट है, तो बाइनरी रिलेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पेयर में कितने पॉसिबल एलिमेंट होंगे 2। Binary relation R from A to B is a subset of the Cartesian products when the order belong to relations. When order pair belong to relation. What is R? R
रिलेशन डिनोटेड बाय आर। रिलेशन को हम जितने भी रिलेशन हो हम इसको आर से डिनोट करना है, या R1 होगा या R2 होगा या अप टू Rn से हम डिनोट करते हैं। तो हम रिलेशन को क्या कहते हैं कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। किस चीज का सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, या कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम इसका सबसेट ले ले तो उस सबसेट का दूसरा नाम क्या होगा, रिलेशन होगा। हम कह सकते हैं कि x रिलेटेड टू y, हम इसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर भी है लेकिन हमने इसको किस तरह रिलेट करना है कि x रिलेटेड टू y या बाई r, x रिलेटेड टू y बाई r, इसको हमने किस तरह लिखा, x रिलेटेड टू y बाई r, या रिटन एज x रिलेटेड टू y बाई r। अदरवाइज अब इफ the order pair does not belong to relation, अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन से ताल्लुक नहीं रखता तो इसको हमने किस तरह लिखना होगा कि x नॉट रिलेटेड टू y बाई r। ये जो सिंबल है यहाँ पर आपका क्या कर दे, इसको क्रॉस लगा दे, इस पर क्या लगा दे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है नॉट। तो रिलेशन क्या होता है, आप देखें रिलेशंस बनता है, आप देखें आप लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप BCS पढ़ रहे हैं तो या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर और सर्वर के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो किसके जरिए हो, बाई केबल्स होता है या बाई वाईफाई होता है। तो ये एक रिलेशन होता है। इस तरह पंखे और स्विच के दरमियान एक रिलेशन होता है बाई केबल या तार, आप इसको कह सकते हैं, इसके दरमियान होता है। फंक्शन और तो फिर इस रिलेशन से फंक्शन बनता है। अगर रिलेशन है लेकिन बाज़ औक़ात रिलेशन तो होता है, जिस तरह आप देखें कंप्यूटर और सर्वर या नेट के दरमियान इसका कनेक्शन होता है बाई केबल या वाईफाई, लेकिन काम नहीं करता। तो हम कहते हैं कि काम नहीं करता क्योंकि इसके दरमियान फंक्शन नहीं होता। रिलेशन तो होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता है। तो इस तरह हमने मजीद क्वेश्चन करना है कि रिलेशन से हम फंक्शन किस तरह बना सकते हैं, इसमें कौन कौन सी खूबियाँ होना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल को देखें। लेट हमारे पास 1 2 है, बी आपके पास 1 2 3, तो आपके पास क्या होगा, इसको आपने फर्स्ट A1 A2 A3 और फिर 2 1 2 2 और 3 लिखना है। इसके पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने हो सकते हैं, 6 क्यों हो सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसके कितने हैं, 2 3 6 तो 6 ऑर्डर पेयर होंगे। अगर हमारे पास R1 एक रिलेशन है, R2 दूसरा रिलेशन, R3 तीसरा रिलेशन, R4 और इस तरह 4 और ऑल क्यों है ये इसी कार्टेशियन, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन का नाम दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं कि ये इस ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। क्या है, सबसेट है। ये भी इसका क्या है, ए बी का क्या है, सबसेट है। ये भी इसका क्या है, और ये भी बदलते खुद भी अपने आप का क्या कहला सकते हैं, सबसेट कहला सकते हैं। और एम्प्टी सेट भी हार्ड सेट का क्या हो सकता है, सबसेट होता है। तो ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आप आते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, डोमेन यानी डोमेन क्या होता है, इनपुट। ये फर्स्ट आप क्या कह सकते हैं, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब देखिए डोमेन ऑफ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर which belong to R denoted by domain। अब सिंपल देखिए इसके फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू ए, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट को देखिए रेंज ऑफ द रिलेशन। तो रेंज ऑफ द रिलेशन को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द रेंज ऑफ द रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल second element of the order pair which belong to relation denoted by that। यानी अगर आपके पास सेकेंड एलिमेंट पर ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट को अगर हम सेट में लिख दे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशंस। तो बात करते हैं रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है, या रिलेशन से हम फंक्शन क्या बना। मैंने पहले भी आपको कहा था
कि रिलेशन का एक एग्जांपल से आपको समझाया था कि रिलेशन तो मानता है केबल के ज़रिए नेट और वाईफाई या केबल या वाईफाई के ज़रिए कंप्यूटर और सर्वर का, लेकिन बाज़ औक़ात नेट काम करता है, बाज़ औक़ात काम नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, तो फंक्शन नहीं होता। तो अब देखिए फंक्शन को हम एक रिलेशन को हम फंक्शन का नाम देख सकते हैं। किस तरह देख सकते हैं कि क्या है, फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू सेट वाई इज ए रिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। अगर हम एक रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन का नाम देख सकते हैं अगर वो टू कंडीशन को क्या कर दें, सेटिस्फाइड कर दें। फॉर एवरी एलिमेंट इन एक्स there is element in y such that xy belong to f. In the other words, every element of x is the first element of the some order pair of the domain of the functions. यानी अगर आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट प्रेस ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों ने चेक करना है। दूसरा प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इसका क्या हो सकता है कि इसमें नो रिपीटेशन होना चाहिए, इसके आर्डर पेयर में, रिलेशन के आर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट का रिपीटेशन ना हो। तो अगर ना हो तो फिर ये क्या कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। दूसरे लफ्ज़ में अगर आपके पास जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन सेट में और y और z इन को डोमेन सेट, अगर इस किस्म का x रिलेटेड टू y हो बाई एफ एंड x रिलेटेड टू z बाई एफ हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसमें रिपीटेशन है, x और y का रिपीटेशन है, क्योंकि एक ही एलिमेंट के कितने इमेज बन रहे हैं, 2, यानी x का इमेज क्या है, y है, और इस तरह x का वैल्यू z भी, तो ये पॉसिबल नहीं, ये फंक्शन की खिलाफ वर्जी हैं। क्योंकि फंक्शन हमसे ये कहता है कि फंक्शन का क्या होगा, यूनिक वैल्यू होगा, उसका आउटपुट वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इन द अदर वर्ड्स नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन सेट देयर इज एग्जैक्टली यूनिक वैल्यू ऑफ द कोडोमेन साइज दैट, क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट का इस कॉल्ड, और आउटपुट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स, और इसको हम किस तरह, दिस यूनिक वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स, या इट इज डिनोटेड बाय एक्स। अब नेक्स्ट करते हैं इस पर कुछ एग्जांपल। देखिए आप देखिए इसका हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम एक्स टू वाई, ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, ये टू रिलेशन है, ये थ्री रिलेशन है। इसको आप लोगों को देखें कि ये रिलेशन है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द फंक्शन। तो अब देखिए इसमें, देखिए इसके सॉल्यूशन को देखें। फर्स्ट आर इज नॉट फंक्शन, क्यों फंक्शन है, बिकॉज 3 does not appear in the first element in order pair in any order pair in R3, यानी इसमें अगर आप देखें कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट सेट, यानी डोमेन सेट, यानी डोमेन सेट में नहीं है, 3 इसमें नहीं है। इसमें देखिए 1 है, 2 है, लेकिन 3 इसमें नहीं है। तो डोमेन सेट, इसका डोमेन सेट क्या है, 1 2 है, और यहाँ पर इसका फर्स्ट सेट क्या होना चाहिए, 1 3, तो ये सेट इसका डोमेन सेट के दरमियान इक्वल नहीं है, तो इसी वजह से ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन की डिफिनीशन को सेटिस्फाइड। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट R2 को, तो इसमें 1 4 2 1 2 2 3 6 को आप चेक कर दें, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज द ऑर्डर पेयर 2 1 और 2 2, यानी फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या है, रिपीटेशन है, यानी 2 के क्या है, रिपीट हो चुका है। या 2 के कितने वैल्यू हो सकते हैं, 2 का इमेज क्या है, 1 है, और इस 2 का वैल्यू इमेज 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी फर्स्ट एलिमेंट बट द डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट है, वो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम फर्स्ट एलिमेंट बट डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट, तो इसी वजह से ये इसमें रिपीटेशन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, इसी वजह से ये फंक्शन हम नहीं कह सकते, क्योंकि फंक्शन डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट को आप देखें R3
फंक्शन है या नहीं है। R3 को देखें 1 4 2 1 3 4। पहले आप फर्स्ट फंक्शन देखें, इसके डोमेन ऑफ द 1 2 3, इसका डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है 1 2 3 है, और फर्स्ट सेट ऑफ द रिलेशन क्या 1 2 3, तो ये भी आपस में इक्वल है। अब देखिए इसमें नो रिपीटेशन है 1 2 3, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं हुआ, तो इसी वजह से ये फंक्शन के डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये इस रिलेशन R3 को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, रिलेशन भी कह सकते हैं और फंक्शन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन के दोनों डिफिनीशन को सेटिस्फाइड करता है। इस R1 और R2 को हम रिलेशन तो कह सकते हैं क्योंकि ये सबसेट है इसके कार्टेशियन। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो ये सेट R1 और R2 इस सेट के क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। अगर हमारे पास लेट x1 और यहाँ पर है y, define the binary relation 2s from x to y as follow। यानी हमारे पास टी एक्स को डिफाइन किया है इस दो एक्सेस फ्रॉम x1 टू y सच इज, ये हमारे पास एक एक रिलेशन होगा जो इसमें आर्डर पेयर पर मुश्तमिल होंगे, एक्स वाई आर्डर पेयर पर मुश्तमिल होंगे, और इसमें आर्डर पेयर की कंडीशन ये होगा कि फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा या इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट यानी सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द आर्डर पेयर के। और इस तरह दूसरा जो हमारे पास एस रिलेशन है, और इस एस रिलेशन तमाम आर्डर पर मुश्तमिल होगा जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि 2 डिविजिबल बाई एक्स माइनस वाई। तो इससे आप क्या चीज़ फाइंड कर दे, आप लोगों ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है कि इसका आर्डर पेयर क्या होगा, क्या हो सकता है। व्हाट इज रिप्रेजेंट टी एस का क्या ले ले, इसका रिलेशन लिख दे, टी का रिलेशन क्या होगा, एस का रिलेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। और फिर आप इसको डिनोट कर दे कि इसमें टी और एस तो रिलेशन है, तो इसमें टी रिलेशन टी आप बताना आप लोगों ने कि टी और एस फंक्शन है, इसमें टी और एस तो रिलेशन है लेकिन फंक्शन है या नहीं, इसको आपने चेक करना है। तो चलते हैं। since are given the relation T consists those order pair which has their first element greater than or equal to the second element। तो आप देखिए इसका अगर आपने इसको करना है इस सेट को, तो पहले आप लोगों ने x और y का क्या लेना होगा, x और y सेट का क्या लेना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ले, x क्रॉस y का क्या ले ले, कार्टेशियन ऑल पॉसिबल ऑर्डर सेट लिख दे। और फिर लिखने के बाद आप इससे वो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर दे जिसका फर्स्ट सेट क्या हो, ग्रेटर हो या इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर हो। तो ये लिखने के बाद वो ऑर्डर पेयर टी सेट में लिख दे और वो क्या कहलाएगा, टी रिलेशन हम का नाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है कि हमने क्या कहा, सी वी गिवन द रिलेशन टेकन दोज ऑर्डर पेयर of the Cartesian para which has their first element greater than or equal to the second element। तो hence the T contains the order pair 5 5, क्योंकि first element second element के क्या है बराबर है 6, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से क्या है ग्रेटर हैं और 6 6 के बराबर है, तो ये भी अकॉर्डिंग, तो ये 3 पॉसिबल ऑर्डर पेयर है जो टी इस पर मुश्तमिल होगा। सिमिलरली अब देखिए ऐसा सी एस सेट एस जो रिलेशन है जो ऑर्डर पेयर मोस्ट इस कंडीशन को क्या कर दें, सेटिस्फाइड कर दें कि आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर से सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर को सब्ट्रैक्ट कर दे और फिर इस पर 2 पर पूरा तकसीम हो, तो वो ऑर्डर पेयर हम एस में लिखना है। तो देखते हैं
Similar is a such a relation which consists those order pair for which the difference of the first and the second element uh, are divisible by 2, डिफरेंस डिविजिबल बाई 2। तो ये अब हमारे पास आते हैं, अगर 4 से 6 को तो -2 को डिवाइड कर तो माइनस आता है 5 -5, तो ये भी डिवाइड हो सकता है। 6 -2 तो ये भी डिवाइड, तो ये आपके पास पॉसिबल रिलेशन बनता है। अब देखते हैं कि टी और एस कौन सा फंक्शन है। टी और एस ये दोनों तो रिलेशन है कि इसमें फंक्शन कौन सा है। टी इज़ नॉट फंक्शन, टी फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट ए फंक्शन के इसमें अगर आपके पास देखें हमारे पास क्या है, डो फर्स्ट सेट ऑफ द डोमेन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द रिलेशन इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन। यहाँ पर 4 हैं फर्स्ट सेट में, लेकिन यहाँ पर is not a function because fx belong to 4 but is not related to any element of y। किसी भी 4 किसी भी एलिमेंट ऑफ y से रिलेटेड नहीं है, तो इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ द फंक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करता। C clear is a define a function since each element of x is related to unique element of y। दोनों कंडीशन ऑफ द फंक्शन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो ये T रिलेशन है, नॉट फंक्शन, और S रिलेशन भी है, S रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। तो ये आप लोगों का आज टॉपिक था फंक्शन में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए आपको डिस्कस सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं।